خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سبوں پر سلامتی ہو۔ آپ پر بھی ہو۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ اور کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ آج نیا سال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سبوں کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام مقدس کو کھولیں، اس میں سے اپنے لیے مرکزی آیت کو لیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 100 گنا برکت کا سال۔ ہاں جی، مضمون یاد کر لیجئے گا، 100 گنا برکت کا سال۔ ایک بار میرے پیچھے بولیے گا، 100 گنا برکت کا سال۔ برکت کا سال۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے 100 گنا، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 70، 80 یا 90 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا برکت کا سال۔ اوکے ہو گیا جی، مضمون یاد ہے؟ یس۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ سال برکتوں کا سبب بن جائے اور خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر اپنے لوگوں پر برکتیں نازل کرے۔ آپ گھر سے جاتے ہوئے مبارک ہوں، گھر میں آتے ہوئے مبارک ہوں، آپ کی ٹوکری اور کٹوتی مبارک ہو، اور آپ کا گھر بھی مبارک۔ تمام فرد جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ سب مبارک ہوں۔ آپ سٹڈی جہاں پہ کرتے ہیں اسکول مبارک ہو، آپ مبارک ہوں، اور آپ کا سفر جو ساری زندگی کا ہے وہ بھی مبارک ہو۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا سفر، ان کا روزگار، ان کی نوکری، ان کی جاب سے جتنی بھی ہیں وہ سب مبارک ہوں، اور اس کا پھل جو ہے 100 گنا ملے؟ سب چاہتے ہیں جی؟ سب چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ دیں اور آپ ٹیسٹ جو دیں، ٹیسٹ میں سے 100% نمبر ملے؟ ہاں جی، سب چاہتے ہیں آپ پاس ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ پوزیشن ہولڈر بنے، خدا آپ کو ایسا بنائے۔ سب اپنے حصے کی برکت کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ یس۔ ہاں جی، سب تیار ہیں؟ یس۔ اوکے، بائبل مقدس میں یاد رکھیے لکھا ہوا ہے کہ جیڑا میرا حصہ اوندا تو رکھوالا۔ وہ خدا ہماری برکتوں کا رکھوالا ہے، اور وہ برکتیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں خدا نے۔ آئیں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے بائبل مقدس میں سے پہلا حوالہ لیتے ہیں، استثنا 11واں باب اور اس کی 8 سے ہم 12ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارا باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خدا نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑ اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے گورے طلب آیت ہے، اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے ہم ایک بار پھر جو ہے میرے پیچھے آپ اس کو پڑھیے گا، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں
खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। उस पर लगी रहती हैं। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस में ये हिस्सा जो हमने अपने हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ा है, इसमें खुदा कलाम कर रहा है, बनी इसराइल से फरमा रहा है। खुदा फरमाता है कि जो हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं वो आपके दिल पर नक्श हो जाए, उस पर अमल करे, ताकि उस मुल्क में, जिस मुल्क में आप जाने को हो, आपकी उम्र दराज हो, आपका भला हो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस मुल्क में खुदा की आंखें हर टाइम लगी रहती हैं। वहां पे बारिश टाइम पर होती है, वहां वो सरसब्ज जमीन है, जरखेज जमीन है, वहां पहाड़ है, वादियां हैं। आप मिस्र से निकल के आए हैं, मिस्र में आप बागों की तरह नालियों सेच कर आप सब्जियां उगाते थे, लेकिन वो ऐसा मुल्क नहीं है। वहां पे आसमान से बारिश होती है और सब्जियां उगती हैं। यहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पानी वास्ते नालियां बनानियां पैन, बल्कि आसमान से बारिश नाजिल होती है। और ये मुल्क जिसमें मैं तुझे लेकर जा रहा हूं, वहां पर दूध और शहद बहता है, यानी कि वो बहुत अच्छा मुल्क है, प्यारा मुल्क है। वहां पे मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कहता हूं कि ये कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है। हालेलुया। कि आप सब तैयार हैं इस बरकत को लेने के लिए? यस। आज खुदा आपसे भी कहता है, सुन लें, जो हुक्म आज मैं अलीशा के वसीला से आपको देता हूं वो आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। आपके लिए बरकतें नाजिल होगी, आपके मुल्क पर, आपके घर पर, आपके तमाम अफराद पर, आपके कारोबार पर, आपकी स्टडी में खुदा की नजरें आप पर लगी रहेंगी। और जिस जिस चीज की जरूरत है खुदा आपको मुहैया करेगा, आपको खुदा सरफराज करेगा। आपकी जॉब का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपके टेस्ट जो आप स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में देते हैं, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आप घर से जाते मुबारक होंगे, घर से आते हुए मुबारक होंगे। यह खुदा आपसे फरमा रहा है। लेकिन शर्त यह है, शर्त क्या है? इस जगह पे आपने, इस हिस्से में आपने पढ़ लिया है। शर्त यह है कि जो हुक्म आज मैं तुझे देता हूं उस पर अमल करना पड़ेगा। क्या आप अमल करने के लिए तैयार है? पिछले साल गुजर गए, खुदा के दूरी के साल थे, गुजर गए। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। जो कलाम आज खुदा आपके लिए बरकत का कलाम कर रहा है उस पर आपको अमल करना है। क्या आप अमल करने के लिए तैयार है जी? हाँ जी। तो ये बरकतें भी आपके लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखें, जो खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं खुदा अपना आसमान उनके लिए बंद कर देता है। लेकिन जो खुदा की फरमाबरदारी करते हैं उनके लिए खुदा आसमान के दरीचे खोलकर बरकतें नाजिल करता है। याद आया होगा आपको वाकया बाइबल मुकद्दस में, पहला सलातीन 17वां बाब, और उसकी अगर आप 1 और 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे पता है क्या लिखा हुआ है? खुदा ने एलिया को भेजा है। उस दौर में लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, खुदा से दूरी अख्तियार कर चुके हैं, गैर मबूदों उनकी पैरवी कर रहे हैं, खुदा को भूल चुके हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपने आसमान को बंद कर दिया है। और कलाम किसके वसीला से किया? एलिया नबी के वसीला से। आसमान बंद हो चुका है, काल पड़ चुका है। इसी तरह जब आप भी खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं तो खुदा आपके लिए आसमान को बंद कर देता है, बरकतें रुक जाती हैं, काल पड़ जाता है, रोटी और पानी का। आपके जानवर जो है, भेड़ बकरियां जो है, भूखा मरना शुरू कर देती हैं और सब कुछ, हरियाली खत्म होना शुरू हो जाती है, जमीन बंजर होना शुरू हो जाती है, आप लानत का शिकार हो जाते हैं। सब कुछ होता है जब आप खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, आसमान बंद हो जाता है, बरकतें नाजिल नहीं होती। लेकिन जो शख्स खुदा के साथ वफादार रहता है
उसके लिए खुदा का आसमान खुला रहता है। याद रखें। अब देखें एलिया नबी, ये खुदा के साथ वफादार है, ये खुदा के साथ वफादार है। तो खुदा ने कहा क्रेत के नाले के पास चला जा, जो यरदन के पास है। चला गया वहां पे। इसका इंतजाम कैसे किया खुदा ने? फर्माबरदारी है ना खुदा के साथ। हाँ जी, सुने क्या हुआ वहां पे? कौवों ने रोटी और गोश्त ला कर दिया, क्योंकि ये खुदा का फर्माबरदार है। काल लोगों के लिए हो सकता है, लोगों के लिए काल पड़ सकता है, आसमान बंद हो सकता है, लेकिन खुदा आपकी बरकतें बंद नहीं करेगा। आज लोग मौत का शिकार हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग खुदा के साथ वफादार हैं तो आपके लिए आसमान का खुदा आसमान को बंद नहीं करेगा, आसमान के दरीचे खोलकर आपके लिए बरकतें नाजिल करेगा। क्या होगा फिर? खुदा ने उसे रजाया। हाँ जी, बताएं जरा। बरकतें नाजिल हो रही हैं। फिर क्या हुआ है कि जब वो क्रेत के नाले का पानी सूख गया है, जहां से वो पीता था, और खुदा ने कहा सैदा को जा, वहां सारपत में तेरे लिए एक बेवा मैंने तैयार किया, वो तेरी रोटी का बंदोबस्त करेगी। हाँ जी, ऐसा ही है। क्या हुआ? खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी की इसने। गया, सैदा को गया, और वहां पे एक बेवा जो है लकड़ियां चुन रही है। आसमान बंद होने की बात कर रहा हूं, उस दौर की बात कर रहा हूं जब लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, तो खुदा भी आसमान के दरीचे बंद कर देता है और बरकतें नाजिल नहीं करता। और आपके लिए भी बरकतें नहीं होती जब आप खुदा की नाफरमानी कर रहे होते हैं। आप बो रहे होते हैं, बीच आपको फल नहीं मिलता। आप स्कूल जा रहे होते हैं, आप टेस्टों में पास नहीं होते, आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। आप जॉब पर जाते हैं, आप नाकामी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप नाफरमानी कर रहे होते हैं। वो पीछे साल गुजर चुके हैं, आप भूल जाए उनको। आज आपके लिए बरकतें, और आज का जो मजमून है वो भी यही है, 100 गुना बरकतों का साल। सैदा में है, सारपत की बेवा के पास वो लकड़ियां चुन रही है, और एलिया ने क्या कहा? मुझे पानी पिला और मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेती है। वो क्या कहती है? मैं और मेरा एक बेटा है, हमारे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मुट्ठी भर आटा है। मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है, ये 2-4 लकड़ियां जो मैं चुनने आई हूं। उसने कहा तू जा, मेरे लिए पहले रोटी की टिकिया लेकर आ। अब टिक्की आने वाली। क्या किया उसने? पहले मेरे लिए, लिखा है पहले मेरे लिए। खुदा के कलाम की फर्माबरदारी कर रही है। फिर बेवा वहां पे एलिया नबी के जरिए से खुदा ने यह भी कलाम कर दिया था। अगर आप पहली सलातीन 17वें बाब को पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है तू टिकिया लेकर आओ, और खुदावंद ये फरमाता है कि तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, ना तेरी मट्टी में से आटा खत्म होगा। और बाइबल मुकद्दस में ऐसा ही हुआ है कि उसने जाकर पहले खुदा के कलाम की फरमाबरदारी, अगर वो भी लालच कर लेती, अगर वो भी खुदा के कलाम की नाफरमानी कर लेती, तो क्या जब तक कार रहता वो उस मट्टी में से खाती? वो उस कुप्पी में से तेल को हासिल कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने फरमाबरदारी की। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल आपके गुजर चुके जितने गुजरने थे, लेकिन यह साल आपकी फरमाबरदारी का साल है। हालेलुया, हालेलुया। बरकतों का साल है, खुशियों का साल है। अगर मैंने स्टार्ट पर यह कहना है कि हैप्पी न्यू ईयर और आपको नया साल मुबारक हो, आपको ढेरों खुशियां मुबारक हो, तो मैं ढेरों खुशियों के साथ यह भी कहता हूं कि आपको बरकतें आपकी जो खुदा ने आपके लिए रखी है आपको मुबारक हो। समझ आ रही है? और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपके लिए बरकतें रखी, आप सबको मुबारक हो। समझ आई है? मेरा ईमान है। अब होता क्या है, लोग जो खुदा से दूर है उनके लिए आसमान बंद हो चुका है, लेकिन इनके लिए आसमान खुला है। जो खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं, सेम इसी तरह
जब आप खुदा के साथ फरमाबरदार हो जाएंगे, आप बीज बोएंगे और खुदा आपको 100 गुना फल देगा। याद रखें, आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे तो खुदा आपको 100% रिजल्ट देगा। इन्होंने फरमाबरदारी की, एलिया ने भी फरमाबरदारी की। एक तरफ मैं देखूं तो एलिया ने भी फरमाबरदारी किया गया है और उस बेवा ने भी फरमाबरदारी की है, तो खुदा ने उनके लिए बरकतें नाजिल की। बाकी सब लोग, इसराइल मुल्क जो है वो काल में मर रहा है, लेकिन ये बरकतों को हासिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? याद है वहां पे जब आग नाजिल हुई थी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोगों ने खुदा को जाना, खुदा को पहचान चुके हैं। ये आप अगर 15वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उन्होंने वही कहा है। सुन ले, इधर देखें सब, वहां पे लिखा हुआ है कि ये वही खुदा है, हमारा खुदा। जब खुदा को पहचाना है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने 3.5 साल के बाद आसमान से मींह बरसाया है। वो काल, वो बाह भूख से मार रही थी आपको, वो लानत जो आपकी नाफरमानी की वजह से आई थी वो जाती रही जब आपने खुदा की तरफ ध्यान दिया। सेम इसी तरह अगर आज आप भी खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा होगे, इस साल में आप खुदा को कबूल करेंगे। सुन लें, अगर इस साल में आप भी खुदा को कबूल करेंगे, खुदा को याद करेंगे, खुदा के हुक्म की पैरवी करेंगे, और मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है कि इस साल में आपको अल्फाजी तौर पर खुदा के साथ नहीं बल्कि करदारी तौर पर खुदा के साथ चलना पड़ेगा, तो फिर आप कामयाबी को भी देखेंगे। सेम इसी तरह जैसे एलिया के दौर में लोगों ने पहचाना, आप भी पहचान जाएं। आपके 20 साल, आपके 30 साल, आपके 25 साल खुदा से दूरी के गुजर गए, वो तो गुजर गए, लेकिन ये साल आज फिर जैसे पहले आते हैं जनवरी, पहला जनवरी आपकी जिंदगी में हर साल आता है, आज फिर वही दिन है। लेकिन खुदा की बरकतें आज फिर आपके लिए पुकार रही हैं कि मैं आपके घर में आना चाहती हूं, मैं आपकी जिंदगी में आना चाहती हूं। खुदा की बरकतें, ये वादे जो खुदा के कलाम में लिखे हैं, आज आपके मुंतजिर है, आपके अंदर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उसको रिसीव करना चाहते हैं? इससे शर्त यह है कि आज जो हुक्म खुदा मेरे वसीला से आपको दे रहा है, क्या आप उस पर अमल करने को तैयार हैं? हाँ जी, तैयार तो होना पड़ेगा, क्योंकि बरकत तभी नाजिल होगी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बाइबल मुकद्दस में अगर आप इस्तिस्ना 11 बाब और उसकी आप पढ़ते हैं 13 से 17 आयत तक, तो वहां पे पता है क्या लिखा है? अगर तुम खुदा के हुक्मों को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से उसको मानो और जिंदा खुदा की बंदगी करो, इबादत करो, तो याद रखें मैं तुम्हारे मुल्क में आइन वक्त पर पहली और पिछली बारिश बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे सिपाहियों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और सिर होगा। लेकिन आगे जान लें, लिखा है लेकिन अगर तू, शर्त ये है, अभी ये शर्त की बात कर रहा हूं, सादा मफहूम में आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन अगर तू खुदा की नाफरमानी करे तो खुदा का गजब तुझ पर भड़केगा, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आसमान को बंद कर देगा। जिस मुल्क पर खुदा की आंखें लगी रहती हैं और उसकी तमाम जरूरियात को उस मुल्क की पूरी करता है खुदा, और उसके रहने वालों की जरूरियात को पूरा करता है, उस पर खुदा अपने आसमान को बंद कर लेगा। जब आप
دنیا داری کی باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے, دنیا داری کی روایتوں کو اپنے سامنے رکھ کر غیر معبودوں کی عبادت کریں گے, مختلف طریقے سے, نئے طریقے سے, 2024 کے طریقے سے آپ عبادت کریں گے غیر معبودوں کی, تو خدا کا غضب آپ پر بھڑکے گا. آج پھر آپ کو کہہ رہا ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں آسمان کو بند کروں گا, اور یہ آسمان بند ہونا برکتیں بند ہو جانا ہے. نہ میہ برسے گا, میہ کی طرح جو برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں بند ہو جائیں گی, اور اس ملک میں جس میں تو رہتا ہے فنا ہو جائے گا. کیا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ سنیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سنیں, ایلیا کے دور میں جب لوگوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تو خدا نے کیا کیا؟ آسمان بند کر دیا, برکتیں بند ہوگی. لیکن جب انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا تو کیا ہوا؟ ان کے لیے برکتیں نازل ہوئی. اور سیم اسی طرح خدا کی آنکھیں آپ پر لگی رہتی ہیں, آپ کی ضروریات کو دیکھتی رہتی ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں, کیونکہ آنکھیں جو اس کی لگی رہتی ہیں, آپ پر لگی رہتی ہیں. لیکن بائبل مقدس میں شرط یہ ہے, مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. لیکن مانگیں گے تب نا جب انسان پر بھروسہ چھوڑیں گے. مانگیں گے تب ہی نا کہ جب آپ دنیا داری کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے پیچھے جائیں گے. مانگیں گے تب نا جب آپ دنیا داری سے دھیان ہٹا کر اپنے خدا کے کلام کے حکموں کو فالو کریں گے, تبھی نا, تبھی برکتیں نازل ہوں گی. نہیں تو یہی آسمان آپ کے لیے پیتل کا بن جائے گا اور زمین لوہے کی. نہ زمین آپ کے لیے بیج کو, نہ آسمان آپ کے لیے بارش کو نازل کرے گا, کچھ بھی نہیں. لعنت کا شکار ہو جائیں. آج خدا آپ سے کہتا ہے, آج جو حکم میں آپ کو الیشا کے وسیلہ سے آپ کو دے رہا ہوں اس پر عمل کریں. یہ نہ سمجھے کہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا, آپ سب کر سکتے ہیں. برکتیں آپ کی رائیں دیکھ رہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, برکتیں آپ کی رائیں دیکھ رہی ہیں. اور آئے میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے ایک شخص کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیدائش اس کا 26 باب, بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا حزاق سے کلام کرتا ہے. اس سے پہلے کہ خدا حزاق سے کلام کرے, اس ملک میں جس میں رہتا ہے وہاں پہ کال پڑ چکا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے اس کے باپ کے دور میں, ابراہیم کے دور میں پڑا تھا. اب حزاق کے دور میں بھی کال پڑا ہے. اب حزاق کے دور میں کال پڑا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا رخ جو ہے مصر کی طرف ہے. اب مصر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا اسے مصر میں جانے سے منع کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے جس ملک میں تجھے میں کہتا ہوں اسی ملک میں رہنا. اور تیرے باپ نے میری فرما برداری کی تو میں نے اس کو برکتیں دی. میں تجھے بھی برکت دوں گا, تجھے بڑھاؤں گا, بڑمند کروں گا. تیرے باپ نے میری بات مانی, پہلی بات. دوسری بات میری نصیحت مانی. تیسری بات میرے حکموں کو مانا. اور چوتھی بات بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے میرے قوانین اور آئینوں پر عمل کیا. تو بھی کر, سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں, تو بھی کر. اور میں تجھے بڑھاؤں گا, برمند کروں گا, سرفراز کروں گا, کامیاب کروں گا, سربلندی کامرانی عنایت کروں گا, صرف تو میرے حکموں کو مان. خدا نے سے مصر سے صرف روکا, رک گیا. کال پڑا ہوا ہے لیکن رک گیا ہے. اب چھوٹی سی بات, اب آپ نے استثنا کی کتاب کو پہلے پڑھا, وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا سنیں ذرا. استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ تو مصر کو دیکھ
जहां से खुदा तुझे निकाल कर लाया, वहां पे तू बीज बोने के लिए बागों की तरह तू नालियां बनाता, उसको सींचता था और उससे सब्जियां हासिल करता था। वहां पे लोग इस तरह की काश्तकारी करते हैं। लेकिन ये मुल्क जिसमें काल पड़ा है नाफरमानी की वजह से, इसी मुल्क में तुझे मैं सरफराज करूंगा। और ये वही मुल्क है जिसकी बाबत खुदा ने अस्तिस्ना उसके 11 बाब में कहा था कि मेरी आंखें इस मुल्क पर लगी रहती है। वो अस्तिस्ना का में जो लिखा हुआ है वो 600 साल के बाद की बात है, लेकिन 600 साल पहले खुदा हिजाक से कह रहा है इसी मुल्क में ठहरा रहा है काल में। लेकिन इसने क्या किया है? खुदा से उम्मीद रखी है, खुदा की नसीहत पर अमल किया है। बताएं जी, यस खुदा की बात को माना है यस और खुदा के हुक्मों को भी माना है, यस आइन और कवानीन पर भी अमल किया है, यस इसने किया है। तो बाइबल मुकद्दस में पता है क्या लिखा है? ये उसी मुल्क में ठहर गया है जिसमें ठहरने का हुक्म खुदा ने दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हिजाक ने उस मुल्क में खेती की जिसमें ठहरने का खुदा ने हुक्म दिया, जहां पे काल पड़ा है। लिखा है कि हिजाक ने उस मुल्क में खेती की है। काल में काल पड़ गया, आसमान से तो बारिश नाजिल नहीं हुई, लेकिन खेती कर रहा है ये बंदा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसी साल पैदाइश 26 बाब और उसकी 12 से 13 आयत में लिखा है कि हिजाक ने खेती की तो खुदा ने उसी साल पहली बात उसे 100 गुना फल दिया, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, 90 गुना नहीं, 100 गुना फल दिया। और दूसरी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे बरकत बख्शी। और तीसरी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसे बढ़ाया। और चौथी बात उसे तरक्की दी। और पांचवी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे बड़ा आदमी बना दिया। खुदा आपको भी बड़ा आदमी बनाना चाहता है, खुदा आपको भी बढ़ाना चाहता है, आपको भी तरक्की देना चाहता है, आपको भी खुदा बरकत बख्शना चाहता है, आपको भी 100 गुना फल देना चाहता है खुदा। लेकिन क्या आप इब्राहिम हिजाक की तरह नसीहत पर, खुदा की बात पर, खुदा के हुक्म पर, खुदा के आइन और कवानीन पर अमल करने के लिए तैयार है? हाँ जी, फिर वही सवाल है, बार बार सवाल करूंगा वो, क्या आप तैयार हैं? यस क्या बरकतें लेने के लिए तैयार हैं? यस तो क्या खुदा के हुक्म पर अमल करने के लिए भी तैयार है? यस हिजाक ने अमल किया, खुदा की नसीहत पर, बात पर, हुक्म पर, आइन पर अमल किया। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में 5 चीजें उसे दी हैं। 100 गुना फल दिया, मुझे जबानी याद होगी, 100 गुना फल दिया, बरकतें नाजिल की है, बढ़ाया है, तरक्की दी है, बड़ा आदमी बना दिया है। और आगे अगर उसको बढ़ाएं तो नौकर चाकर भी उसको दे दिया खुदा ने। यहां तक कि जिस मुल्क में रहता है वहां के फलस्ती इस पर रश करने लगे हैं। और बादशाह ने, वक्त के बादशाह ने से कहा कि तू भाई थोड़ा सा साइड पे हो जा, कहीं यह ना हो कि तू हमारे लिए खतरा बन जाए। ऐसा वक्त आ गया, कोई शख्स तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे बख्श दूंगा। लेकिन यह कब होगा? जब आप खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करेंगे। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में पता है क्या लिखा है? फकत तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत बख्शूंगा, तेरे बीच से बीमारी को, वबा को, हैबत को निकाल दूंगा। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भागेंगे, क्योंकि तू अपने जिंदा खुदा की इबादत कर रहा है जिस मुल्क में तू रहता है। क्योंकि खुदा की आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। आज खुदा की आंखें पर लगी हुई हैं, साल के शुरू से लेकर आखिर तक खुदा की आंखें आप पर लगी हैं। 365 दिन, 366 दिन खुदा आप पर ध्यान किए हुए है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आप उसकी फरमाबरदारी में गुजारें। आप इस साल में एक एक पल, छोटे बड़े फैसले खुदा की कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आपको सरफराज करेगा। पीछे भूल जाएं जो हुआ था, खुदा आपसे प्यार करता है। जो गुजर गया गुजर गया,
آئے میرے ساتھ نکالیے گا, ہم لاسٹ حوالے کو پڑھتے ہیں. یسایہ 43 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت, جہاں پہ یوں لکھا ہے کہ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتا نہ رہ. دیکھ میں نیا کام کروں گا اور اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر, بھول جائیں. پیچھے جو گزر گیا آپ کا خدا سے دوری کا سال تھا, لیکن خدا تو آپ کے ساتھ تھا. آج آپ اس کنارے پر کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سال آپ کے لیے سمندر کی طرح برکتوں کا سال ہے, بڑا گہرا. لیکن خدا آپ سے صرف یہ چیز طلب کر رہا ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں جو آج میرے وسیلہ سے خدا آپ کو دے رہا ہے. اور پھر خدا آسمان کے دریچے کھول کر آپ پر بارش کی طرح, پچھلی اور پہلی بارش کی طرح آپ پر برکتیں نازل کرے گا. بارش کی ایک ایک بوند کی طرح آپ پر برکتیں نازل کرے گا. اور اگر آپ نافرمانی کریں گے اس سال میں بھی, تو آپ کے لیے آسمان پیتل کا, زمین لوہے کی ہو جائے گی, آسمان بند ہو جائے گا, آپ فنا ہو جائیں گے. آج خدا آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام بخشوں گا. آپ گناہوں کے بوجھ کے نیچے ہیں, آپ پچھلے سال بے روزگاری کے بوجھ کے نیچے تھے, آپ فیل ہونے کے بوجھ کے نیچے تھے, آپ پچھلے سال جو ہے گھر سے جاتے ہوئے لانتی کہلاتے تھے, گھر میں آتے ہوئے لانتی کہلاتے تھے, لعنت کا شکار تھے, آپ بے روزگاری کا شکار تھے, آپ جاب پر جاتے تھے, آپ کی تنخواہ پوری نہیں ملتی تھی, ایڈوانس کٹ جاتے تھے. خدا کہتا ہے اب تیار ہو جاؤ, میری فرما برداری کرو, میں آپ پر برکتیں نازل کروں گا. اور اسی سال, جو سال آپ کی زندگی میں ہے, اسی سال میں خداوند فرماتا ہے کہ میں آپ کو 100 گنا پھل دوں گا جیسے میں نے 1000 کو دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر لاسٹ پہ میری دعا ہے خدا آپ کو 100 گنا پھل دے, بیماری سے بچائے, ناکامی سے آپ کو بچائے, آپ ہر وقت مبارک ہوں, ایک ایک پل مبارک ہوں. آپ اپنی زندگی میں اس سال میں کامیابی کو دیکھیں اور خدا آپ کو دے گا کامیابی, صرف اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں. کیا آپ تیار ہیں؟ یس. اوکے جی, کیا آپ نے فیصلہ کیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کیا کیا اس سال میں آپ نے کرنا ہے؟ یاد رکھیں جو نافرمانی کرتا ہے نا, یہ 2025 کی بات کر رہا ہوں, آپ دعا کریں گے خدا کی دعا کو نہیں سنے گا. یہ ہے کہ آسمان بند ہو جانا, دعا نہیں سنے گا. آپ بائبل کلاس میں آئیں گے, خدا پھر بھی نہیں سنے گا. آپ 3 ٹائم گھر میں بھی دعا کریں گے, آپ روزے رکھیں گے, خدا کی نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی آپ کے اندر آ چکی ہے. لیکن جب آپ کے اندر فرما برداری آئے گی, آپ کو خدا 100 گنا پھل دے گا اور آپ کو کامیابی دے گا. ہاللیلویا. برکتیں آپ کے دروازے پر کھڑی کھٹکھٹا رہی ہیں, اپنے دل کا دروازہ کھولنے